Hi, this is Anchal Puri on Spotify with Taza Talks. So today we are welcoming our esteemed guest. मैं पहले उसके उनके बारे में बताऊँ आपको. She is a business mentor for women entrepreneurs और legendary गुरु स्कूल की फाउंडर हैं और बहुत ही देखने में भी बहुत खूबसूरत हैं और हमारे ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं. तो हम वेलकम करते हैं प्राजक्ता मैम का. प्राजक्ता बड़े हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं. तो वेलकम मैम. नमस्ते। हाउ आर यू? नमस्कार. आई एम गुड। ओके. तो मैम सबसे पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। अमेजिंग। वंडरफुल मैम. तो मैम लेट्स स्टार्ट आवर इनक्रेडिबल कॉन्वर्सेशन. ओके. So लुकिंग what फॉरवर्ड। inspired you to become a business mentor for women entrepreneurs? Okay. So this is something that is very personal to me as well. So my mom was a working woman. So while she was, pregnant and she was carrying me, she was working till the ninth month. And even after delivering me, having me, she immediately joined office. And I would always hear these stories, and how with a heavy heart she would keep me at a babysitter's, and she would go to office and come back and nurture me. So I've seen her journey very closely. And also, when I started working in my corporate life, I've seen a lot of women juggling these choices कि शादी के बाद, स्पेशली बच्चा होने के बाद, देर इज दिस यू नो हम टग ऑफ वॉर जिसको बोलते हैं, दैट हैपेंस टू देम कि मैं क्या करूं, फैमिली को प्रायोरिटी दूं या मेरे करियर को प्रायोरिटी दूं. सो दे ऑलवेज मेकिंग दीज डिफिकल्ट चॉइसेस. जॉब पे जाना है तो बच्चे को घर छोड़ के जाना है, या फिर जॉब छोड़ ही देना है तो फिर इट हैम्पर्स द आइडेंटिटी एज वेल. So I've seen them making these difficult choices throughout. And that's when it made me question, okay, why do women have to choose between their identity and their family? And when I started my own entrepreneurship journey after my 10 years of corporate life, I realized कि entrepreneurship जो होती है ना, ये आपको बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी देती है, फ्रीडम देती है कि आप चूज कर सकते हो कौन से टाइम में आपको काम करना है, कितना काम करना है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. एंड दैट्स हाउ आई फोकस्ड my attention on helping women entrepreneurs so that they don't have to always choose between their own identity or career and between their family. So that's how this happened. Uh, what are the biggest challenges women face while starting a business today? I would say there are three big challenges or major challenges that they face. First would be their self doubt. क्योंकि एज अ वुमन ना, हमारा अपब्रिंगिंग समटाइम्स वैसे हो जाता है, तो हर बार हम खुद को ना डाउट करते रहते हैं. एम आई गुड इनफ? कैन आई गो आउट एंड सेल दिस प्रोडक्ट? विल पीपल बाय फ्रॉम मी? सो हर बार हम खुद को ही डाउट करते रहते हैं. सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट challenge, I would say, that women have, that they are extremely talented, but they always underestimate their capability. Okay. Second is they're very good at what they do. तो उनका जो क्राफ्ट है, क्राफ्ट एज इन द स्किल दैट दे ब्रिंग इन देयर बिजनेस, दे ऑलवेज गुड एट दैट. बट द प्रॉब्लम इज क्लैरिटी. बहुत औरतें जो होती है अपने पैशन से या हॉबी से बिजनेस को स्टार्ट तो कर देती है, बट उनको पता नहीं होता है कि हाउ कैन दे ग्रो दिस पर्टिकुलर स्किल इनटू अ प्रॉफिटेबल स्केलेबल बिजनेस. सो एंड में ये होता है कि दे पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. हार्ड वर्क तो हमारे खून में होता है. सो वी आर ऑलवेज हार्ड वर्किंग, but we don't see the consistent results because we don't have clarity around the business model, the strategies that we need to use. And the third biggest challenge as a woman, I feel, multitasking. We have been glorified for this, that we play so many roles, okay, as a mother, as a wife, as a daughter, so many roles together, and we are multi capable, multi passionate. ये सारी चीजें हमेशा बोली जाती है. तो हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो यही चीज को हमारे बिजनेस में भी करने को लगते हैं, that we try to do everything by ourselves, and then we become the bottleneck in the business ourselves. So these are the Exactly. three major challenges.
Right. How important is mindset in building a successful business? I feel that is the most important part. Apart from just, building your business, as a game of numbers, सबसे important होता है आपका mindset. क्योंकि अगर आपका माइंडसेट ही सही नहीं है, आप कोई बिजनेस नहीं कर पाओगे. एंड रादर व्हेन आई वर्क विद विमेन एंटरप्रेन्योर्स, मेरा फर्स्ट स्टेप इन माय एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, मेंटोरिंग जर्नी में जो होता है, दैट इज फोकसिंग ऑन देयर माइंडसेट, focusing on their identity. So when I talk about mindset, I more focus, there's a more focus on identity shift. क्योंकि आइडेंटिटी आपकी जितनी बढ़ सकती है, मतलब ऐसे बोला जाता है कि यू कैन नॉट आउट परफॉर्म योर ओन सेल्फ इमेज. अगर आप खुद के नजर में आप अच्छे नहीं हो, तो कितने भी अच्छे हो, कितना भी अच्छा काम करे, आपका बिजनेस नहीं ग्रो कर सकता. सो यू कैन कांट आउट परफॉर्म योर ओन सेल्फ इमेज, राइट. एंड स्पेशली क्या होता है फॉर विमेन, जब एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं तो दे कम आफ्टर मे बी सो मेनी इयर्स वर्किंग इन टू अ स्ट्रक्चर्ड एनवायरमेंट. बहुत सारी औरतें जब बिजनेस करती है, उससे पहले उनका एक जर्नी रहता है कॉर्पोरेट लाइफ में, या फिर एक बड़ा सा करियर ब्रेक रहता है, उसके बाद आ जाती है. तो ये ड्यूरेशन में ना उनका थॉट प्रोसेस बहुत चेंज हो जाता है, उनकी बिलीफ सिस्टम्स बहुत चेंज हो जाती है. सो दे आर नॉर्मली थिंकिंग कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस, मे बी आई एम नॉट पर्सन हु कैन मैनेज मनी, आई एम नॉट गुड विथ मनी, राइट. या फिर मैं हर बार पैसे की बात करूंगी तो लोग सोचेंगे कि कितनी लालची है. तो ये बहुत सारे हमारे बिलीफ सिस्टम्स बन जाते हैं. तो अगर ये बिलीफ सिस्टम के साथ हम अपना बिजनेस करने लग जाए, तो इसका असर बिजनेस पे होता है. क्योंकि ये सारे बिलीफ सिस्टम्स आपके प्राइसिंग पे अफेक्ट करते हैं, आपके सर्विस पे अफेक्ट करते हैं, आप खुद को कैसे प्रमोट करते हो उसके उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, राइट. सो Mhm. इन शॉर्ट इट अफेक्ट्स योर बिजनेस. सो दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट योर माइंडसेट इट्स. सो अगर आप आपके माइंडसेट को फिक्स नहीं कर सकते हो, बिजनेस इज समथिंग दैट इज नॉट फॉर यू. Absolutely. What are the key qualities every successful women entrepreneur should have? Hmm. Hmm. Okay, so I would suggest that, of course, there are so many qualities which are important. But if we talk about key qualities, three key qualities would come to my mind first. सबसे पहले है सेल्फ बिलीफ. क्योंकि अगर आप खुद पे बिलीव नहीं कर सकते, तो आप हमेशा खुद को डाउट करते रहोगे. अभी बिजनेस ऐसे है ना, इट्स नॉट लाइक जॉब. ओके, एट एंड ऑफ द मंथ यू आर गोइंग टू गेट योर सैलरी चेक. दैट डजंट हैपन इन बिजनेस, बिकॉज व्हेन यू गेट इनटू बिजनेस, इट ऑपरेट्स इनटू द जोन ऑफ अनसर्टनिटीज, जहाँ पे कोई गारंटीज नहीं होती है, राइट. So there are times when you have to go beyond your comfort zone. So अगर आप खुद पे यकीन नहीं कर सकते हो ना, तो आप वो डिफिकल्ट डिसीजंस नहीं कर पाओगे. सो सेल्फ बिलीफ इज सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट की क्वालिटी, आई वुड से. सेकंड की क्वालिटी दैट कम्स टू माय माइंड इज willingness to learn, and not just to learn but to adapt as well. अभी ये हो जाता है वो जनरेशन्स के लिए जिनके स्पेशली ना फैमिली बिजनेसेस रह चुके हैं. ओके, वो सीखना चाहते हैं बट अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतने साल से सेम चीजें करते आ रहे हैं. और द मार्केट टुडे इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. आप देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी इतने फास्ट पेस पे बदल रही है, काम करने का तरीका इतना चेंज हो रहा है. तो अगर हम नई तरीके नहीं सीखेंगे, उनको अडेप्ट नहीं करेंगे अपने बिजनेस में, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप सीखो एंड आप अडेप्ट करो. सो ओनली पीपल हु कैन who are curious to learn can succeed. And the third important quality is, of course, courage to take imperfect actions. क्योंकि बहुत लोग यही सोचते हैं कि सही टाइम आएगा ना तो मैं ये करूंगा, सही प्लान होना चाहिए, मैं परफेक्ट प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे हम, उसके बाद स्टार्ट करेंगे. बट बिजनेस ऐसे नहीं होता है. बिजनेस इज मोर अबाउट कि आप इम्परफेक्ट एक्शन कैसे ले सकते हो. इट इज अ विलिंगनेस टू स्टार्ट. आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव अलोंग द वे. So
I feel the three key qualities: self-belief, willingness to learn and to adapt, and third, courage to take imperfect actions. जी मैम, जैसा आपने ये की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक आपने ये बताया कि की क्वालिटीज कैसे होती हैं, हम्म ठीक है? तो एक एंटरप्रेन्योरशिप में सेल्फ डाउट या फेयर से कैसे बाहर निकलेंगे? बढ़िया क्वेश्चन है ये। मैं एक ना सिंपल सा एग्जांपल देके ये आपको बताऊंगी इसका आंसर। मेरे लिए जो है आंसर इसका, ठीक है। अभी एक बंदा है जिससे स्विमिंग सीखना है, ठीक है। उसने अपने लाइफ में कभी स्विमिंग सीखा नहीं है, तो हम्म। ऑफ कोर्स उसको डर है पानी में उतरने का। अभी ये बंदा बैठा है स्विमिंग पूल के एज पे, उसने बहुत सारे किताबें पढ़ी है, उसने बहुत सारे कोर्सेस लिए, वीडियोस देखे, सारी चीजें की, बट उसका डर तभी जाएगा when he actually steps into the water. So same applies for entrepreneurship also, for your business also. डर तो रहेगा ही, ऐसे कोई टाइम नहीं रहेगा कि आपका डर 100% चला जाएगा. There's no way to it. The only way to overcome your fear or your self doubt is to take action. आपका कॉन्फिडेंस पहले बिल्ड नहीं होता है. हमको ये लगता है कि मैं ना पहले सीख लेती हूँ फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर मैं एक्शन लूंगी. दैट नेवर हैपेंस. You take action, and that's when you overcome your fear, you build your confidence, and self doubt वैसे ही निकल जाता है आपका. So this is how you can overcome your fear and self doubt. You just have to go there, experience लेके आपको बढ़ते जाना है. राइट। हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्ले की बात करें हम्म तो उसको कैसे अपना एक वुमेन एम्पावरिंग वुमेन कैसे उसको अपनी एक इंडिपेंडेंस को उसमें बदल सकती है कि मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, लेकिन वो बहुत सारी चीजों में स्टक है, वो नहीं कर पा रही, तो क्या करना पड़ेगा? हम्म 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 इसमें भी मैं अपना ना पर्सनल एग्जांपल बताऊंगी. So while I was growing, I saw, I've seen my mother, I've seen my grandmother, and after marriage, I've seen my mother-in-law. So वो कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू माई ग्रैंड मदर. सो माई ग्रैंड मदर यूज टू सेल वेजिटेबल्स and she had 7 children, and she managed to educate each one of them and run her own family. My mother-in-law had a very small jewelry business, imitation business, but she managed not just to survive her family, she also managed to buy her own house. So वाओ। इन्हें जब मैंने देखा है, मेरी मॉम के बारे में तो मैंने बताया कि she has worked for her entire life. So when I've seen these women working, ऐसे कोई बड़ी चीजें नहीं की उन्होंने, बट जो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस था काम करके, और वो इंडिपेंडेंस के वजह से उनके पास जो कॉन्फिडेंस था अपने फैमिली को सपोर्ट करने का, टू वॉइस, मतलब एक financial freedom जो होता है, it's not just always about earning money or having some source of income. Financial independence to me is more about the constant, freedom from that constant thought of scarcity. मैंने बहुत औरतों को ये चीज करते हुए देखी है कि हर छोटी छोटी चीज को हम रखते हैं. मतलब मे भी 50 साल पुराने बर्तन भी हम रखेंगे ये सोच के कि अरे कभी तो काम आ जाएंगे. सो दैट कम्स फ्रॉम दैट थॉट ऑफ स्केर्सिटी कि मेरे पास कुछ कमी है. जब हमारे पास फिनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है तो ये पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है. तो आपने जैसे बोला कि बहुत लोगों के पास ये इंडिपेंडेंस नहीं है, तो उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं करनी पड़ती. यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस विथ ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट एज वेल. What is required is actually action. पैसा नहीं रिक्वायर्ड होता है, आपको एक्शन लेना इम्पोर्टेंट है. आप जब एक्शन लेने लगोगे तो पैसा आने लग जाता है. सो दैट इज व्हाट आई हैव सीन इन माय entire life and my experiences, that the moment you start taking your imperfect action, money follows, because money always follows speed of action. एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। मैम, आप कैसे गाइड करती हैं एक राइट बिजनेस आइडिया को या उसको नीश बनाने के लिए? आपकी गाइडेंस में क्या रहता है? ओके. सो मेरे लिए बिजनेस जो है ना, इट इज मोर अबाउट हु यू आर.
मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस कर रहे हो तो मार्केट में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है इसके पीछे आप भागो और फिर डिसाइड करो कि नीश कौन सा लेना चाहिए या व्हाट शुड बी योर स्पेशलाइजेशन. इफ यू आर समबडी हु वांट्स टू बिल्ड अ लेगेसी बिजनेस, ऐसे वाला बिजनेस नहीं है जो जिससे मैं एग्जिट करना चाहूँ, बट अ लेगेसी काइंड ऑफ अ बिजनेस, इट शुड ऑलवेज अलाइन विद हु यू आर. Because I believe that sustainable business usually comes from a deeper alignment between the person and the problem they are solving. So, if you ask me how I help people, so in my book Career Divorce, I have also published this framework that is called as a dream framework. Okay, तो इसमें 5 कंपोनेंट्स है. फर्स्ट है डिजायर, डी का फर्स्ट, ड्रीम का फर्स्ट डी है डिजायर. डिजायर मतलब व्हाट यू लव टू डू. ओके. सेकंड इज रिजॉल्व, ऐसे कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आपने आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में खुद के लिए सॉल्व की है. ई स्टैंड्स फॉर एंड गोल्स. एंड गोल्स मतलब ऐसे कौन से कॉजेस है जो आप सपोर्ट करते हो, ऐसे कौन से ग्रुप्स है जिनको आप सपोर्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल विमेन एम्पावरमेंट, दैट इज अ कॉज. क्लाइमेट चेंज कॉज. सस्टेनेबिलिटी, राइट. सो आप ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनके लिए बहुत ही यू केयर अबाउट इट. देन ए इज योर अबिलिटीज. अबिलिटीज मतलब आपकी स्किल्स हो सकती है, आपका नॉलेज हो सकता है, राइट, आपके स्ट्रेंथ्स हो सकते हैं. एंड फाइनली एम इज मोनेटाइज, मतलब आपके पास ये सारी चीजें हैं बट ये चीजों से आप पैसा कैसे कमाओगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल आप टेकी हो तो आप पैसा कैसे कमा पाओगे, सिखा के या कोई टेक्नोलॉजी बिल्ड करके. सो व्हेन ऑल ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स ऑफ ड्रीम align together, you discover a business niche that is more authentic to yourself and it is also valuable in the market. So that is how I help women entrepreneurs to find their niche. परफेक्ट मैम. मैम, अर्ली स्टेजेस जब होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो व्हाट मिस्टेक्स शुड न्यू एंटरप्रेन्योर्स अवॉइड इन देयर अर्ली स्टेजेस? आपको क्या लगता है? ओके. अगेन मैं आपको 3 मिस्टेक्स बताऊंगी. पहली वाली ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो मोस्ट विमेन एंटरप्रेन्योर्स मतलब जिनके साथ मैंने काम किया है अभी तक, मैंने देखा है ये पैटर्न. अगेन विद एन एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करूंगी. ये लोग क्या करते हैं, मतलब हम चाबी बना लेते हैं पहले, बट हमें पता नहीं होता है कि ये चाबी जो है कौन सा ताला खोलेगी, राइट. सो व्हाट दीज एंटरप्रेन्योर्स डू इज, हम पहले प्रोडक्ट या सर्विस बना लेते हैं, ओके, और इसमें बहुत सारा टाइम बिता देते हैं, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, बट हमें पता ही नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट या सर्विस हमने बनाई है, राइट, व्हाट एग्जैक्ट प्रॉब्लम डज इट सॉल्व्स या हु नीड्स इट. तो हमको इसकी क्लैरिटी नहीं होती है. सो इफ वी डोंट हैव क्लैरिटी अबाउट इट, तो फिर वो ताला और की वाला सिचुएशन हो जाएगा कि की तो बन गई है बट ताला कौन सा ओपन करना वही पता नहीं है. सो दैट इज व्हाट हैपेंस, राइट. बट इन बिजनेस हमें पहले प्रॉब्लम पे फोकस करना है एंड वो प्रॉब्लम के बेसिस हमें सोल्यूशन अपने प्रोडक्ट या सर्विस से ऑफर करना है. सो दिस इज अ मिस्टेक दैट मोस्ट पीपल मेक, कि अपने पैशन के ऊपर कुछ चीजें स्टार्ट कर देते बट टेस्ट नहीं करते मार्केट को, राइट. Second mistake that happens is especially women entrepreneurs, okay, because हमारा नर्चरिंग ही वैसे हुआ, हमारी अपब्रिंगिंग ही वैसे हुई. वी ट्राई टू प्लीज एवरीबडी, जैसे अपने लाइफ में सास ससुर काका बुआ सभी को हमको खुश रखना है, तो हम बिजनेस में भी ना वही करने को जाते हैं. वी ट्राई टू सर्व एवरीबडी. तो जब जब हम सबसे बात करने लग जाते हैं, मतलब इट कैन बी everybody, so everybody is your customer. So when you try to talk to everybody, what happens is nobody can relate with you, okay. आपका मैसेज जो है ना बड़ा ही डाइल्यूट सा हो जाता है, ओके. एंड राइट कस्टमर को समझ में नहीं आता है वट एवर सर्विस और प्रोडक्ट दैट यू आर ऑफरिंग, whether that is for them. So that is the second mistake that people should avoid in their early stages. They should be very specific to their audience, right. And third, women, again जैसे मैंने आपको बोला था कि हम मल्टीटास्किंग करते हैं, ओके, एंड सेम मिस्टेक को अपने बिजनेस में भी लाते हैं, ओके. वी वर्क इन द बिजनेस एंड नॉट वर्क ऑन द बिजनेस.
तो क्या होता है, हमारा व्यू जो है ना वो बहुत लिमिटेड हो जाता है, हम अपने बिजनेस में एक मजदूर बन के रह जाते हैं, राइट? सो वी आर कॉन्स्टेंटली डिलीवरिंग सर्विसेज, मैनेजिंग द डे टू डे टास्क, बट वी नेवर सिट बैक, ओके, और स्टेप बैक टू थिंक कि भाई इतने साल से जो बिजनेस स्ट्रैटेजी मैं यूज कर रही हूँ वो सही है या नहीं है, राइट? सी, स्टार्टिंग स्टेजेस में इट इज ऑब्वियस दैट यू वुड बी मल्टीटास्किंग, बट देयर शुड बी वन डे, दिस अगेन दिस इज समथिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय बुक अगेन, कि आपको पूरे हफ्ते को ना ऐसे स्प्लिट करना चाहिए कि देयर शुड बी एटलीस्ट वन डे व्हेन यू आर वेयरिंग दैट फाउंडर्स हैट, जब आप बैठे हो एंड उस दिन पे आपका काम बस एक विजनरी के जैसे है कि आपको प्लान करना है, आपको देखना है कि कौन सी स्ट्रैटेजीज चल रही है, रिव्यू करना है. सो अगेन दिस इज द थर्ड मिस्टेक दैट entrepreneurs should avoid in their early stages. I understand कि execution high होता है, but still they should step back and have a bigger vision. So these are the three problems. मैम, एंटरप्रेन्योरशिप पे आने के लिए what do you think, how important is networking in personal branding and growth? Okay, amazing. So that's an incredible question that you've asked. मैं नॉर्मली बात ना ऐसे एग्जाम्पल्स या स्टोरीज से करती हूँ ताकि लोग रिलेट कर पाए, तो आई वुड अगेन लाइक टू एक्सप्लेन दिस विद अ स्मॉल एग्जाम्पल विच आई नॉर्मली गिव टू माय क्लाइंट्स. ठीक है, मान के चलो आपने एक दुनिया की सबसे बेस्ट कार बना ली है, ओके, एंड यू बिल्ड दैट कार एंड यू हैव केप्ट दैट कार इन योर ओन वर्कशॉप, हिडन. आपकी कार कितनी भी बढ़िया हो, ओके, बट दुनिया में कोई एक इंसान नहीं होगा जो आपके पास वो कार खरीदने को आएगा, क्योंकि वो कार इनविजिबल है, राइट? सो इफ you have to sell that car, you need to do two most important things, right? पहला है, उसे आपको एक शोरूम में डालना है जहां पे लोग उसे देख सके, और सेकंड है आपको वो कार को टेस्ट ड्राइव करने देना है लोगों को. So with these two analogies, I draw the analogies from these two examples, is personal branding and networking is like that showroom and the test drive. ठीक है, तो पर्सनल ब्रांडिंग ये होता है कि यू हैव टू शो अप, यू हैव टू बी विजिबल इन द मार्केट. तो ये सोशल मीडिया हो या कोई फिजिकल फोरम्स हो, wherever you feel your customers are there, you need to show up there. आजकल मार्केट इतना सैचुरेटेड है कि प्यासा कुएं के पास नहीं जाता है, कुएं को ही प्यासे के पास जाना पड़ता है. तो यू नीड टू बी विजिबल, बिकॉज इफ यू आर नॉट विजिबल एंड यू आर समबडी लाइक दैट कार इन दैट वर्कशॉप जो ढकी हुई है, कोई कस्टमर्स नहीं आएंगे. सो दैट इज हाउ पर्सनल ब्रांडिंग इज इम्पॉर्टेंट in today's world, and it is very easy because social media has made it free for you, right? So that is how personal branding is important, and your networking is like that टेस्ट ड्राइव. मतलब आपने अभी आपका पर्सनल ब्रांड तो बना दिया, मतलब लोगों को पता है कि आप एग्जिस्ट करते हो, वो अवेयरनेस आ गया है, बट अवेयरनेस से लोग खरीदेंगे क्या आपसे? तो नहीं, आपको रिलेशनशिप भी बनानी पड़ती है, आपको उनका ट्रस्ट जीतना पड़ता है. सो लाइक दैट कार जो शोरूम में है, मैं बस शोरूम के बाहर से जाके बोलूंगी नहीं कि भाई ये कार पैक कर दो, मुझे ये खरीदनी है. दैट डजंट हैपन. आई विल नॉर्मली गो इनसाइड, आई विल चेक द फीचर्स, I will want a test drive, okay? And all of this happens in a networking. Networking मतलब आपका business card share करना नहीं होता है. It's more about where you build your relationship with people, right? They understand who you are, what services you offer, and how good you are. So that's how networking is like that test drive. And अगर ये दोनों चीजें नहीं है, nobody is going to understand your expertise, right? When these two things come together, अपॉर्चुनिटीज जो होती है ना वो नेचुरली ओपन अप हो जाती है, आपको ज्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती है. परफेक्ट मैम, एक रैपिड फायर राउंड करेंगे हम आपके साथ, श्योर, ठीक श्योर. है? बिजनेस और जॉब? ऑफ कोर्स बिजनेस, इट गिव्स यू द फ्रीडम कि आपको आपकी जिंदगी डिजाइन कैसी करनी है, कर सकते हो आप. ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही. पैशन और मनी? I would say purpose, because when you serve people, what happens is money comes back to you just like a thank you note. रिस्क और कंफर्ट?
आई वुड से कैलकुलेटेड रिस्क, बिकॉज हर बार आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन एक्सपैंड कर लीजिए. दैट्स व्हाट योर कैलकुलेटेड रिस्क इज ऑल अबाउट. Right. Leader or learner? Always a learner, because a leader is always learning. Online or offline business? Online, but with a lot of human connect. Discipline or motivation? Of course, discipline, because motivation is something that is external. उसकी कोई guarantee नहीं होती है. Discipline always gives you guarantee. Yes. Early morning or late night work? For me, early morning always. It's the most refreshing time. One word for success. Peace in whatever you do. Biggest strength? Discipline, I would say, for me. One line advice for women entrepreneurs. I would say for women entrepreneurs, you just go out and share your story. Conduct your business like it's spiritual, like a service. जैसे आप ट्रांजैक्शन से बाहर आ जाओगे, आप देखोगे कि इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाएंगे. परफेक्ट. तो मैम आपसे कनेक्ट करने के लिए कैसे कौन से हैंडल्स पे जाना होगा? So I'm available on LinkedIn. I'm available on Instagram. I'm also available on my website, that is prajaktabadhe.com. So you can choose whatever you want to connect with me. Perfect. Wonderful, ma'am. So it was really incredible conversation with you. And viewers, episode release होते ही link share कर दिया जाएगा और links के नीचे ही मैम के links आपको मिलेंगे. So definitely you can connect with her for your wonderful entrepreneurship. Thank you very much. Stay tuned, ma'am.